read the first point in detail. जल्दी पहला point, printing and issuing of currency notes. एकदम fast revision, speed में जोरती मार जोरती बोल. Finance Ministry of the government issues 1 rupee currency note 50 paisa, 10 paisa, rupees 1, rupees 2 and rupees 5. RBI notes issue rupees 5, rupees 20, rupees 10, rupees 50, rupees 100, rupees 200, 500 and 2000. Okay, banker to government, regulator to all scheduled banks, loan provider, banker to government, advisor, agent, manage currency coins and notes, manage bonds and accounts, bankers, bank and the lender of the last resort. RBI is the banker and regulator of all the scheduled banks. It manages cash reserves, direction of credit policy, rate of interest, credit control. RBI controls the process of direct credit creation through various tools of monetary. Credit control એટલે શું દીકરા? Credit control. એવું કંટ્રોલ કરે છે કે લાઈક કેટલું ક્રેડિટ જઈ શકે છે આપણને, કેટલું સિક્યોરિટી જોઈશે અને બધું જ. नहीं क्रेडिट कंट्रोल सुनो. क्रेडिट कंट्रोल यानी मार्केट में रुपया ज्यादा डालना है कि मार्केट में रुपया कम डालना है, उधारी वाला. बिकॉज वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. अगर मार्केट में डिप्रेशन है तो पैसा डालो या निकालो. इन्फ्लेशन है तो निकालो, पैसा ज्यादा है. मार्केट में डिप्रेशन है तो क्या करोगे आप? पैसा डालोगे. हाँ, तपेली खाली है तो तपेली में पानी भरोगे. हाँ, और तपेली में पानी ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है तो विल यू पुट मोर के लेस? अगर ज्यादा डालोगे तो क्या हो जाएगा? विच फ्लो? ओवरफ्लो. ओके केनिशा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रेगुलेटर? कंट्रोल करती है मतलब. हाँ, तो ये मैं पता है क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसके साथ, ताकि जब सुन रहे हो ध्यान देना, तुम्हारा कोई डाउट सॉल्व हो जाए इसके अंदर. इज इट क्लियर? फाइन. नेक्स्ट पॉइंट. Custodian of foreign exchange reserves. Yes. Responsibility of maintaining the value of rupee. RBI maintains the value of Indian currency by buying and selling foreign exchange. RBI maintains the value of Indian currency by buying and selling foreign exchange in the open market. It is also a custodian of India's reserves of foreign exchange currencies. It administers foreign exchange reserves by checking inflow and the outflow of foreign exchange currencies. Yes, हमारा जो इंडिया का करेंसी है उसका वैल्यू कहीं बहुत गिर ना जाए, उसका ध्यान रखना है. ओके और अगर वो ज्यादा गिर रहा है, यानी अगर रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया, तो आरबीआई को इंडिया में डॉलर्स और लाने पड़ेंगे और बाई करना पड़ेगा, ताकि लोगों का भरोसा मेंटेन रहे बैंक के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी बनी रहे. बराबर है? ताकि हम दूसरे पाकिस्तान ना बन जाए, अफगानिस्तान ना बन जाए, कहीं लुखे ना बन जाए हम लोग. यू गेट द आइडिया? देश कहीं बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए. ओके वेरी गुड. तो बच्चा हमने ये कल्पित अग्रवाल कौन है, उसका वीडियो बंद है. कल्पित अग्रवाल, कीप द वीडियो ऑन. अगर आपको निकाल दिया जाएगा, जल्दी करें आप. एंड इवन ओमकार बंदल. चलो फाइन. यस, गो अहेड. Non-monetary functions, regulatory and supervisory functions. RBI supervises financial and money markets, expansion and methods of working of scheduled banks, working of non-banking finance companies and cooperative banks. Promotional functions. Due to many people not holding a bank account and operation through or unorganized market, it is difficult to know exact value of transaction, value of money and national income. RBI tries to create banking awareness among the people to bring them from unorganized market to organized market. It encourages expansion of branches in rural areas, promotes setting up of cooperative banks in the interest of people. Financial inclusion and development. India is a country with huge economic diversity and rural-urban divide. RBI continuously makes effort to provide special facilities to priority sectors like agriculture, small-scale industries, self-employed people, traditional and cottage industries, etc. RBI manages the Prime Minister's Jan Dhan Yojana. मुर्ताजली आगे पढ़ो, वहां से जा शुरू, जहां रुकी हो. मुर्ताजली, तुमको लग रहा है मजाक हो रहा है बेटा क्लास में यहाँ पे? ना सर. तो तुम फाफे मार रहे हो, इधर उधर किसी से बातें कर रहे हो? सर मम्मी से बात कर रहा था. हाँ तो मम्मी को बोलो क्लास चालू हो गया, दिख रहा. तो मैं तुमसे बातें करने आया हूँ, मेहमान हो तुम मेरे यहाँ पे यार. क्या है यार, कम ऑन डोडो, ध्यान दो पढ़ाई में. क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम लोग?
बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं आपको, तुम यहाँ बातें कर रहे हो, मम्मी पापा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या फालतू बातें कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट। हाँ स्टार्ट। RBI manages the Prime Minister's Jan Dhan Yojana. RBI works towards protecting the interest of the rights of the consumers. Yes. It publishes all types of banking information with free access to all on its official website. Functions of RBI divided into two parts: monetary functions and non-monetary functions. चलो तो अपने कौन से हो गए केनिशा, कितने हो गए बेटा अपने? Monetary and non-monetary दोनों पढ़ लिया हमने, बहुत बढ़िया है। ठीक है, रोमिल पटेल ने निकल कांतों ने फोन कर दिए हुए थे, रोमिल पटेल। चल उसका वीडियो ऑफ है। हाँ जल्दी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या था, मेरे को ध्यान दे। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी रिगार्डिंग व्हाट? द सप्लाई ऑफ मनी। बराबर है। ओके, रुफका, अगर रुफका ढंग से बैठो, लेटो मत बाबा बेटा। और यहाँ पे देखो रुफका, ध्यान देना। हरूफ का अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा उसको तुम क्या कहोगे? वेरी गुड, आई गॉट द लिप मूवमेंट, इन्फ्लेशन। और अगर मूवमेंट, अगर रुपया कम हो गया तो क्या कहोगे? डिप्रेशन। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें पॉलिसी बनानी है। कुछ याद आया? बैंक रेट, रेपो रेट, अब याद आया? अब उसके अंदर जाने वाले बेटा हम लोग अब उसका करेंगे रिविजन, भयंकर करेंगे, ध्यान रखना। सो देयर आर टू मेजर्स। सो व्हिच आर द टू मेजर्स? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बराबर, एकदम स्पीड में जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट। केनिशा बात दिख रहा जल्दी। मॉनेटरी पॉलिसी, it is a policy which aims to control the supply of money, keeping in mind the economic development and the public interest. Monetary policy is also known as stabilizing policy. There are two measures: quantitative measures, general measures, repo rates and reverse repo rates. When commercial banks need funds for very short period of time, like 1 day, 7 days, 15 days, etc., they sell some securities which is purchased by RBI with an agreement that commercial banks will again repurchase the same security in the future. right. During inflation, repo rates is increased. As a result, commercial banks lend to public at higher rate. As a result, people borrow less, which reduces supply of money and inflation. Reverse repo rate. When RBI borrows for short term from commercial banks is known as reverse repo rate. In reverse repo rates, commercial bank parks its security with an agreement to repurchase. An increase in reverse repo rate will motivate the commercial bank to park or to give funds to RBI. It will lend more to RBI, which will decrease their lending to the public and reduces the supply of money. उसके बाद एक table. Okay, stop. Shell from Pratap Nagar, Shell. SHAIL. Shell. हाँ Shell. रेपो रेट એટલે શું બેટા, જલ્દી બોલ તો. रेपो रेट, रेपो रेट, रेपो रेट। हाँ शैल, शैल क्या सर? हाँ, व्हाट इज रेपो रेट? हाँ जल्दी बोलो, रेपो रेट। नहीं खबर था। अच्छा, नोटबुक में नोट्स लिखिए बच्चे। हाँ था, પણ દાદાની ઘરે છું અત્યારે એટલે નથી એ મારી પાસે. દાદાની ઘરે છું તો તઈ નોટ્સ નથી એવું? હા લખેલી છે, રોજ હોમવર્ક બી કરેલું. હા પણ રેપો રેટ મગજમાં તો યાદ હે ને, તમે હું ભણાયું તે યાદ નહીં? સારું, મારું નામ યાદ છે ને? હા. I love you a lot, take care bro. चलो फाइन। हाँ केनिशा वाचो। बैंक रेट के, अच्छा उससे पहले मैं बोल दूं वापस। रेपो रेट यानी किसने किससे लोन लिया? कॉमर्शियल बैंक ने लोन लिया। किससे? आरबीआई से लोन लिया। शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म? वेरी शॉर्ट टर्म। कितने दिनों के लिया? दिन बोल तो केनिशा, कितने दिन के लिए? 1 day, 7 days, 15 days, etc. बहुत बढ़िया केनिशा। इन्फ्लेशन में क्या होगा? रेपो रेट इंक्रीज। वेरी गुड। और रिवर्स रेपो रेट यानी क्या? जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन देती है। हाँ केनिशा, पार्किंग ऑफ फंड्स એટલે બેટા मतलब એ આરબીઆઈ એના ત્યાં એનું શેર્સ ને બધું તઈ
પાર્ક કરી દે એટલે એમને આરબીઆઈ આપી નહીં, દે. કોમર્શિયલ કોમર્શિયલ બેંક, બેંક. હા. કોમર્શિયલ અને બેંક પછી માર્કિંગ કરી રહેલી, ધ્યાન રાખ બેટા, બરાબર છે. અને ડિપ્રેશન માં શું કહેવાનું, રેપો રેટ નું ડિપ્રેશન માં ડિક્રીઝ. वेरी गुड. चलो तो एक रामबाण समझ लो बेटा, गोखी नाखजो. इन्फ्लेशन में रेपो रेट इंक्रीज करना, डिप्रेशन में रेपो रेट को डिक्रीज करना, और रिवर्स रेपो रेट वो भी इन्फ्लेशन में इंक्रीज और डिप्रेशन में डिक्रीज. ओके, अब उसका उल्टा क्या होगा, बैंक रेट. तो शॉर्ट टर्म का उल्टा लॉन्ग टर्म, वो होगा बैंक रेट. कौन किसको लोन दे रहा है, एज यूजुअल आरबीआई लोन दे रही है, किसको, कॉमर्शियल बैंक को. दैट इज कॉल्ड योर बैंक रेट. जल्दी जल्दी वांचिए स्पीड में. बैंक रेट नंबर 2. The rate at which RBI lends to the commercial banks for long term is called bank rate. During inflation, bank rate is increased, which makes expensive. This will demotivate the public to take the loans. Thus, the demand for the money will decrease. This policy is known as tight money policy or dear money policy. वन मार्क During क्वेश्चन depression, पूछेंगे, वन मार्क क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान रखना बेटा. व्हाट इज टाइट मनी पॉलिसी ऑब्लिक डियर मनी पॉलिसी. टाइट मनी पॉलिसी, विवेक ध्यान रखना, टाइट मनी पॉलिसी डियर मनी पॉलिसी बनने का मीनिंग एक ही है, यानी पैसा आसानी से नहीं मिलेगा, ब्याज बहुत ज्यादा लगेगा. समझ में आया दिशा कोठारी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज डियर मनी पॉलिसी? डियर એટલે શું દિશા બોલ તો બેટા? डियर એટલે दिशा कोठारी को अनम्यूट किया जाए. हाँ दिशा बोलो. दिशा यू अनम्यूट योरसेल्फ नाउ. નથી આવતું ત્યાં આગળ. चलो, she's not able to answer. Fine, let me ask somebody else. ओपी रोड से दिया बोलेगी. हाँ दिया, छोटी बच्ची वो रही. हाँ दिया. व्हाट इज डियर मनी पॉलिसी? The policy of keeping bank rate very low. तो high. ओ माय गॉड, बच्चा ध्यान दे दिया बेटा. बेटा डियर એટલે બહુ જ મોંઘું, महंगा हो गया. प्लीज सब लोग जागो, छोटे बच्चों एग्जाम में आएगा, क्या कर रहे हो बेटा. डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी. जब मैं टाइट बोलता हूं यानी बड़ी मुश्किल से नहीं बोलते, हालात बड़े टाइट हो गए, यानी बड़ी मुश्किल से पैसे मिल रहे हैं. समझ में आया दिया? सुन रही हैं आप? सो डियर એટલે ब्याज बहुत ज्यादा हो गया है, पैसा आसानी से मिल नहीं रहा है. आप समझे? एंड व्हाट इज चीप मनी पॉलिसी? CHEAP, चीप એટલે बड़ी सस्ता हो गया, बड़ी आसानी से पैसा मिल जा रहा है. ठीक है, चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं. आगे बोल बेटा केनिशा, जल्दी वाच. During depression, bank rate is decreased. This motivates the public to take more loans. This is known as cheap money policy. RBI doesn't use bank rate because bank rate is a rate for a long term and cannot be changed frequently. Stabilization. अपना शेयर बाजार जो मार्च महीने में जो निफ्टी था अपना, इट बिकेम 7,000 पॉइंट्स. अप्रैल, मई, जून और आज जुलाई होने आया, इट इज अबाउट टू बिकम 11,000 पॉइंट्स. माय गॉड, 7,000 से गिर एकदम नीचे गिरा और वापस जहां था 2-2.5 महीने में तो वापस जहां था उधर पहुंचने आया. केनिशा, आ शेयर बाजार आटलू फटाफट ऊपर केम गयो? क्योंकि निर्मला सीतारामन जी ने क्या किया? इन्वेस्ट किया. नहीं, इन्वेस्ट नहीं, लोगों की जेब में वो जो इंडस्ट्रियां जिनको मार पड़ी, प्लीज सुनो बेटा, वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, वो जो मीडियम स्केल इंडस्ट्री हैं, जिनकी फट गई थी, धंधा नहीं हुआ था, जिनके लॉकडाउन में आते आ गए थे, उन सारी इंडस्ट्री को पैसा दिया, लोन दिया फ्री ऑफ कॉस्ट. समझ में आ रहा है? ओके, यानी उनके जेब में क्या भर दिया? LIQUIDITY, लिक्विडिटी भर दिया, पैसा फुल भर दिया, क्योंकि मंदी का जमाना आ गया था. समझ में आया? तो दुगनी स्पीड से बाजार ऊपर की तरफ भागा अपना. ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ो. Stabilization under emergency situation. Yes. Every commercial bank can borrow from RBI in any emergency situation like acute shortage of money against the approved government securities. This rate is higher than repo rate. In 2016, this rate was 7%. This is called marginal standing facility. Right. तीर्थ गोहिल बताएगा. तीर्थ गोहिल,
what do you mean by this word acute? Acute shortage એટલે બેટા Yes, sir. acute shortage, acute. Acute એટલે perfectly અમુક. Perfect नहीं, perfect. A perfect नहीं, acute. ACUT, acute. Acute, acute shortage. ओपी रोड दिया दिया acute shortage म्हणजे हाँ दिया बोलो. You have to unmute yourself. कोई बात नहीं, उसके बाद में एक्यूट शॉर्टेज એટલે શું કે નિશા? गंभीर शॉर्टेज. बहुत ज्यादा सीन खतरनाक हो गया है. एक्यूट એટલે जबरदस्त हालत खराब हो गई है. और इस हालात में कॉमर्शियल बैंक को हेल्प कौन करती है? एक ही बैंक है हमारे हिंदुस्तान की, वो है आरबीआई. जैसे कि यस बैंक अभी उठ गई थी तो उसको कनिशा कौन सी बैंक ने बचाया उसको? SBI. हाँ, वो एक्यूट था प्रॉब्लम. इसी क्लियर? एसबीआई से काम निपट गया हमारा, बराबर है. तो एसबीआई ने बोला है कि 5 साल तक तेरा हाथ में डालूंगा. फॉर कमिंग 5 years आई विल हेल्प यू. दैट्स इट. छठे साल से तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते. समझ में आया? एसबीआई उसको कोई लाइफ टाइम हेल्प नहीं करने वाली है, ओनली फॉर 5 years. चलो फाइन. और रोमिल पटेल है ना वहां पर, कौन है वो? उसका वीडियो नहीं, रोमिल पटेल, उसको निकाल दो या उसको मैसेज करो. हाँ चलो, go ahead दिख रहा जल्दी. Cash reserve ratio. According to RBI Act 1934, all commercial banks have to compulsory keep certain fixed minimum cash reserves with RBI. In 1962, cash reserve ratio is variable between 3% to 15%. During inflation, cash reserve ratio is increased, which reduces their capacity to give loan to general public. During depression, cash reserve ratio is decreased. Yes, Vivek Prajapati, what is cash reserve ratio? Vivek Prajapati, what is cash reserve ratio? एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे? मतलब सर जो आरबीआई जो रिजर्व रखती है अपने पास, मतलब कमर्शियल बैंक के पास से जो रिजर्व रखती है. ठीक है. इन्फ्लेशन में क्या करना चाहिए सीआरआर का? करण पटेल फ्रॉम ओपी रोड. बेटा कैश रिजर्व रेशियो का तुम क्या करोगे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? सर डिक्रीज थશે. अरे भैया गलती बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो? मजा ले रहे हो? मेरे मस्ती कर रहे हो शाम को. कोरोना के टाइम में मस्ती कर रहे मेरे साथ. जल्दी बोल. इन्फ्लेशन में इंक्रीज थશે एंड डिप्रेशन में डिक्रीज थશે. हाँ, लॉजिक समझा क्यों क्या हो गया? लॉजिक समझा क्यों ऐसा तूने क्यों बोला? સર કેમ કે ઇન્ક્રીઝ થશે તો પેલું એટલે ઓછા મળશે એ લોકોને. कौन है ये लोगों ने? જે कॉमर्शियल बैंक के हाथ में पैसे कम हो जाएंगे तो वो भी आगे किसी को लोन देने वाली नहीं है, बराबर है. सब लोग बेटा रिवीजन में विशेष ध्यान दे प्लीज. ओके, एग्जाम बोर्ड की होने वाली है, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, एग्जाम लिखनी पड़ेगी, ध्यान दो. चलो आगे बढ़ो. यस, नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा. Statutory liquidity ratio. चलो, According to banking regulation. निशा तुम खुद जल्दी बोल दो. इसका मतलब ऐसा अनछुआ पैसा जो बैंक को अपने कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है. हाँ, उसको कहीं डैश नहीं कर देना, लोन नहीं दे देना, इन्वेस्ट नहीं किसी करना, उसको वापरने का नहीं. पता है ऐसे बड़े लोग बोलते हैं कि घर में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रकम रखो, कुछ पैसे रखो जो कभी तुम यूज नहीं करोगे, उसको छुपा के रख दो कहीं पे, भूल जाओ कि कहीं थी वैसा. क्यों? ताकि कभी भी बहुत खराब समय में आपको काम आएगा. उसको वापरने का कभी भी नहीं. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वो पैसा जो हर एक कॉमर्शियल बैंक को अपने हाथ में रखना है, यानी रोकड़ा नहीं, पर किस हालात में? गोल्ड में या तो डॉलर में या तो इक्विटीज में जहां इन्वेस्टमेंट किया होगा ताकि वो पैसा बढ़ता रहे.
याद रखना, पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसा सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा और पैसों की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। आज का 10 रुपया कल का क्या हो जाएगा 2 रुपया, क्योंकि महंगाई रहेगी ना। आई रिपीट, आज का 10 रुपया कल कितना हो जाएगा 2 रुपया, क्योंकि क्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो अगर आपको महंगाई को हराना है तो तीर्थ गोहिल उसका सॉल्यूशन बताएगा। हाँ, तीर्थ गोहिल उसका सॉल्यूशन क्या है? तीर्थ गोहिल, हाँ हाँ तीर्थ गोहिल, यस सर। हाँ क्या करोगे? महंगाई बढ़े तो पैसों का क्या करोगे बढ़ाने के लिए? कि जैसे तुम वीडियो में इतने अच्छे दिखते हो तो वैसे दिखता क्यों नहीं वो वीडियो? तुम वीडियो बंद करते फटाफट। और तुम 2 दिन लास्ट वीडियो में सो गए थे, आंखें से मीच के एकदम जबरदस्त सो गए थे शायद। नहीं सर, जाग ही रहा हूँ मैं। तो ठीक है भाई, जागते रहना भैया, बीच बीच में मुझे ऐसे 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 करते रहो बीच बीच में, ताकि मुझे भरोसा हो जाए। चलो फाइन, ओके ओके। बात पे ध्यान देना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या था? हर एक कॉमर्शियल बैंक को अपने हाथ में कैश रखना जरूरी है। और कितना रुपया रखना है, इन विच वेज, और कितना, 25 या 27 पड़ेगी वो। जल्दी पढ़ के फास्ट, रीड फास्ट। According to RBI Regulation Act 1949, all commercial banks have to maintain liquidity equal to or not less than 25% of their total deposits in the form of gold, cash, shares, security, etc., which is not mortgage. If SLR is increased, it reduces the capacity of commercial bank to give loan to general public. Yes, very good. फिर Open market operation, OMO. OMO refers to buying and selling of government securities by RBI. In inflation, RBI sells securities and government bonds in the market. This will take away the excess money from the market and this will inject the money in the market. During inflation, RBI purchases the shares, security and government bonds from the market. This will invest the money in the market in the market. बस आधा ही लिखा है सर इसमें। आगे पढ़ो। ओपन मार्केट Sir. ऑपरेशंस, वो हो गया सर, स्टरलाइजेशन ऑफ आरबीआई ध्यान अकाउंट। रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में ध्यान रखना, यानी आरबीआई कब बेच रही है और कब खरीद रही है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, केनिशा, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई शू कर से सेल कर बाय के सेल, सेल वेरी गुड। और कब बाय करेगी? डिप्रेशन में। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। स्टरलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट द शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज। ओके, तो इन शॉर्ट सब बच्चे सुन लो बेटा, क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। क्या करने से रुपया का सप्लाई कंट्रोल में रहेगा, क्वांटिटी कंट्रोल में रहेगी? उसके 7 रास्ते हैं। क्वांटिटेटिव एग्जाम में आएगा तो भूलना नहीं। अभी हम जो देखने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव, या तो कहेंगे सिलेक्टिव। जो आपने फिनिश किया वो जनरल है, और जो रामबाण है, जो एक खतरनाक जो निशाना है, जो एकदम खतरनाक तीर है आरबीआई का, वो है कैश रिजर्व रेशियो। जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उससे खेलना नहीं चाहिए आरबीआई को। याद रखना, इट्स अ वेरी डेंजरस वेपन इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई। क्यों? वो कभी भी कॉमर्शियल बैंक्स की लिक्विडिटी को या तो बढ़ा सकती हैं या तो कम कर सकती हैं। यानी प्लीज सुनो बेटा, अगर कोई पूछे इंटरव्यू में भविष्य में, तो जो आरबीआई नॉर्मली यूज करती हैं कंट्रोल करने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स को, वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, शॉर्ट टर्म। कैश रिजर्व रेशियो बहुत डेंजरस है, अनुष्का रावल ध्यान देना। कैश रिजर्व रेशियो बहुत डेंजरस है, इन्हीं जोड़े वारे गड़े अलपला नहीं करवाना, जरूरत पड़ने पे उसका सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट्स AK-47, दर 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 चल जाएगी। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिलेक्टिव में आते हैं। सिलेक्टिव में खाली 3 पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। अब मेरे को यहां देखो, सिलेक्टिव, क्वालिटेटिव में
4 पॉइंट दिए टोटल। उसमें पहला पॉइंट है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, यानी क्या, अमीर लोग ज्यादा गिरवी रखेंगे और गरीब लोग गिरवी कम रखेंगे। बच्चों सिक्योरिटी एटले कसूक ने कसूक, ओमकार क्या रखना, गिरवी रखना, कुछ ना कुछ हमें मॉर्टगेज रखना है। समझ में आया? आज अमीर जो है वो लैम्बोर्गिनी खरीदेगा, अमीर जो है वो बड़े बड़े एक्सपेंसेस करेगा, तो उसके पास हमें गिरवी कुछ ज्यादा रखवाना पड़ेगा ताकि वो विजय माल्या जैसा भाग ना जाए। हमें कुछ सुविधा चाहिए ना ताकि हमें उसके ऊपर कंट्रोल रहे। ओके, क्या अमीर ट्रैक्टर लेगा? डू यू थिंक अमीर विल बाय फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, જંતુનાશક દવા જશે ઉધાર લઈને? ના, આ બધું કોણ કરશે? ગરીબ માણસ કરશે। તો એને લોન ફ્રી આપ્યો તો આપી દો, गरीब को हो सके तो लोन भी फ्री दे दो। समझ में आया? तीर्थ गोहिल, क्यों ऐसा बेटा? तीर्थ गोहिल કેમ એવું બેટા? अरे कुठे गेले ते? आलं? आला हाँ तीर्थ। सर क्योंकि अमीरों के पास ज्यादा पैसे है ना तो वो भाग जाते हैं, और गरीब के पास पैसे कम होते हैं इसलिए वो नहीं भागेंगे। अच्छा, इसलिए उनको मफत में हम लोन दें तो चलेगा, पर अमीर को ज्यादा मॉर्गेज बनना देना चाहिए। सुनो बेटा, इसका मतलब लॉजिक सुन लो। अगर आप लोग गरीबों को ब्याज फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन दोगे ना तो उनका जज्बा बढ़ेगा, उनका मोटिवेशन बढ़ेगा कि कौन हमारे साथ खड़ी हैं? मुर्ताज अली, कौन खड़ी है हमारे साथ? बैंक सर। बैंक नहीं, सरकार खड़ी है। यू गेट द आइडिया? लोग हमारे सपोर्ट में बैंक्स खड़ी हैं, गवर्नमेंट खड़ी है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो दो प्रकार की बात सुन लो। आम जो बता लर्न करो मेरे साथ, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। उसको म्यूट कर दे मुर्ताज अली को। यहाँ देखो दो रिक्वायरमेंट है। आ गया आपको आ गया, एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट इज मार्जिन? के करण पटेल को 100 रुपया चाहिए लोन के लिए। बैंक क्या बोल रही है? हम आपको 90 रुपए देंगे। तो करण खुश होगा कि नाराज होगा? करण थम्स अप और थम्स डाउन? थम्स अप, यानी उसको लोन ज्यादा मिल रहा है क्योंकि बैंक उसको 90 रुपया दे रही है। लेकिन करण को अगर खुद 90 निकालने हो और बैंक खाली 10 रुपया दे रही हो तो थम्स, करण थम्स डाउन। ओके, मार्जिन यानी क्या? बैंक खुद कितना दे रही है। तो दो बेटा आपको समझ में आ गया लॉजिक। एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं, वो जो घर के बाहर गेट पे बैठा है वो, नॉट दैट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी गिरवी કેટલું મૂકવાનું એ વાત ચાલે, गिरवी કેટલું મૂકવાનું, सुना बेटा? और दूसरा क्या है आपका? मार्जिन रिक्वायरमेंट। देन सीलिंग ऑन क्रेडिट। सो व्हाट इज सीलिंग ऑन क्रेडिट? हर फालतू बात पे लोन नहीं मिलेगा। डू यू गेट द आइडिया? बेफिजूल, एकदम यूजलेस, जो अनप्रोडक्टिव है। व्हाट इज अनप्रोडक्टिव? जिसमें कुछ कमाने को मिलने वाला है नहीं, वैसी फालतू बातों पे लोन मिलने वाली नहीं है। तो सीलिंग लगा दिया। एंड लास्ट पॉइंट क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, यानी अमीरों से ज्यादा और गरीबों से ब्याज कम लो। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करना आपको। ओके, बहुत बढ़िया। तो बेटा हमने क्या फिनिश कर लिया है? ध्यान रखना, हमने 2 क्वेश्चन फिनिश किए हैं। कौन से केनिशा फिनिश किया बेटा? जल्दी बोल तो। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। बहुत बढ़िया, 2 हमारे सुपर फंक्शंस हो गए हैं और मेजर्स भी हमने रिवाइज कर लिया। ये मैं आपको जानबूझ के वापस करवा रहा हूं ताकि आपको कहीं भूल गया तो याद आए। बराबर है? आई एम ट्राइंग फ्रॉम माई साइड। लेट्स गो अहेड नाउ। कॉमर्शियल बैंक्स पढ़ते हैं जल्दी, अभी क्लास फिनिश नहीं हुआ, जल्दी कॉमर्शियल बैंक्स पे आओ। कॉमर्शियल बैंक्स एना खाली हेडिंग वांची जा, बाकी एमा कई जवा जेवुं छे नहीं। और एक बार लाइव डिस्कशन करेंगे ऑन क्रेडिट क्रिएशन। जल्दी फास्ट, कम ऑन। Functions of commercial banks: primary functions to accept deposit, current account, savings account, recurring account, fixed deposit account, providing credit facilities, payment and withdrawal facility,
ओके बस बराबर। क्रेडिट क्रिएशन आ गया। हाँ, क्रेडिट क्रिएशन। चलो केनिशा, तुम्हें समझ में आता है ये कैसे होता है बेटा? हाँ, चलो हाँ। केनिशा, व्हाट इज द प्राइमरी डिपॉजिट? The amount by which the customers opens a bank account. हाँ, अब उसका क्या बाजू में रखना पड़ेगा? Cash reserve ratio. बाजू में रख दिया, फिर जो अमाउंट बचा उसका क्या करने का? लोन देने का। चेक में के कैश में? चेक में। जब वो चेक बैंक में जाएगा तो दूसरे के लिए क्या बनेगा? प्राइमरी डिपॉजिट। हाँ, उसका भी वापस उसमें क्या कटेगा? CRR कटेगा। हाँ, फिर उसका क्या होगा? लोन देगा। फिर वो चेक में कैश में? चेक में। हाँ, और वो उसके लिए क्या बनेगा? तीसरे आदमी के लिए प्राइमरी डिपॉजिट। उसका क्या कटेगा? CRR। हाँ, तो देखो जिन बच्चों ने उस दिन टेबल बनाया था वो टेबल आपके सामने है, नोट्स में देखो बेटा। क्रेडिट क्रिएशन टेबल एग्जाम में आवशे। क्रेडिट क्रिएशन यानी क्या? तो उस वक्त पोएट्री मत लिखना के चाल मन जीवी लइए, એવું लगता है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्रेडिट क्रिएशन, ये लोन पैदा कैसे होती हैं, क्रेडिट कैसे जनरेट होता है, वो डायग्राम टेबल बना के समझाया हूं। कम ऑन रिवाइज, 2 मिनट्स रिवीजन जल्दी। माइंड समझ में आया बेटा? पल्ला क्लियर से दिख रहा? किसने? हाँ, प्रवीक मिश्रा। टेल मी द काउंट। किधर गया? सर आपने बहुत तेज तेज बोला ना, इसलिए थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा फिर से शॉर्ट में बता दोगे सर? क्या बेटा? आपने बहुत तेज तेज बोला ना, इसलिए थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा शॉर्ट में बता दो ना सर वापस। मतलब मैं तेज तेज क्या बोल दिया? ये क्रेडिट क्रिएशन जल्दी जल्दी बोल दिए, इसलिए हाँ, समझा नहीं तेरे मैं। पास वो डायग्राम पड़ा है, वो बैंक वाला नेट डिपॉजिट वो पड़ा हुआ है? हाँ है ना सर। हाँ, बस उसको जरा रिवाइज करने के लिए मैंने बोला, वो रिवाइज करो। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो मुझे वापस हैंड रेस करो। हाँ सर, थैंक यू सर। સર हाँ સર આપણે છે ને જે CRR કટ કરીને જે 800 રૂપીસ આયા ને, हाँ, તો એ તો આપણે લોન આપી દીધી, તો જે સામેવાળો વ્યક્તિ જેને લોન આપી એને યુઝ કરી લીધું, તો પછી આગળ લોન આપવા यूज માટે નથી કેવી રીતે? કર્યું। સૌથી પહેલા તો એ જમા થયું ક્યાં આગળ? બેંકમાં ચેક જમા થયો। ઓકે, હા, અને એ જે જમા થયું એના પર અને સાંભળો, there is something called loan sanctioned અને loan used। तो सैंक्शन आपको 800 का है, पर हो सकता है आपको जरूरत खाली 600 की हो या 100 की हो, क्योंकि मेरे को पता है अगर पूरा यूज करूंगा तो पूरे पे ब्याज लग जाएगा मेरे को। जैसे कि हाउसिंग लोन लिया तो 40 लाख का लोन तो लिया है, पर यूज खाली 25 लाख किया ना, तो ब्याज कितने भरूंगा मैं? 25 लाख पे। हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओके, बहुत बढ़िया किया हम लोगों ने। तो हमने सुपर रिवीजन कर लिया आज बेटा, ऑलमोस्ट कॉमर्शियल बैंक का। अब याद है आपको પેલું બાંકુ એટલે પેલી બેંકો ક્યારે સ્ટાર્ટ થઈ હતી? કેની સર ડુ મી એ ફેવર દીકરા, ટેક્સ્ટબુક નું એ જે પેજ છે ટેક્સ્ટબુક નું સ્ટાર્ટિંગ નું પેજ તારે એ વાંચવું પડશે, બેંકુ વાળું। ऐसा कुछ? हाँ हाँ મળી ગયું। हाँ, वो पेज पर स्टार्टिंग वाला वो बहुत जरूरी है। ये पूरा 1 मार्क क्वेश्चन आएगा। आई एम वेटिंग फॉर 30-40 सेकेंड्स। जल्दी सब लोग टेक्स्ट बुक का वो पहला पेज पे आ जाए, चैप्टर वाला। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स, डोंट वरी। बैंकू वालों, पेज 35। हाँ, पेज नंबर 35। हाँ, स्टार्ट केनिशा। In English language, the हाँ। word bank means heap or mass. In Sanskrit language, the word akin to the bank is bhanda, which means collection of capital or fund. The word bhandod is derived from bhanda. The English word bank originated from Italian word banca or from French word banque. Both these ये- word meant ये bench. अभी तक ये बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है इस साल आ जावे। ये भांडा क्या है? भंडोल, भंडोल गुजराती लोग को आवड़े છે? भंडोल नहीं बोलते, हमने भंडोल देखा किया। भंडोल, भंडोल એટલે फंड इकट्ठा किया है, तो भांडा। समझ में आया गांडा? यस।
આગળ વાંચો. Oh, this word meant bench for money exchange. In olden days, European money lenders or money changers used to display different currency coins in different countries in big heap or bench on benches or tables for the purpose of lending or exchanging. Thus, they were exchangers of various currency coins of various regions. Thus, the word bank came into use. It can be concluded that the word bank is related to collection of funds or money. The Bank of Barcelona, set up in Spain in 1401, वन मार्क क्वेश्चन आ गया. हाँ, is known to be the first real bank established in the world. In the introduction of currency money, people started using money not only as a measuring rod of value, unit of account, or medium of exchange, but also as a store of value and standard of deferred payments. With furthering in the functions of money, there arose a need to maintain the value of money. In સ્નેહ short, ઠક્કર, વાતો નહીં બેટા ક્લાસમાં. હા, વાંચ વાંચ બેટા. In short, the economic system dependent on the money. There arose the need for the institutional arrangement for safety of money, transfer of money, and maintaining the value of money, and the role of such institution played by bank. बराबर है. ठीक है, ये पूरा पेज है 1 मार्क क्वेश्चन से भरा हुआ है. नाउ इज द चैप्टर ओवर? दिख रहा? Yes, sir. ओके, नाउ एकदम शांति से 5 मिनट तक पूरी टेक्स्ट, नॉट पूरी, सी द होल चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. पूरा टेक्स्ट बुक में से एकदम शांति से, कंसंट्रेशन से खाली पेजेस को पलटे, देखें कि क्या हमको आता है, और एक्सरसाइज को उड़ती नजर से एक बार देखें. सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज खास, અને હજુ પણ જો નોટ્સ ના બનાવી હોય, નોટ્સ માં એક્સરસાઇજ સોલ્વ ના કરી હોય તો પ્લીઝ એને કરી લેજો. જલ્દી ખાલી વાંચી જાઓ, એક્સરસાઇઝ ના ક્વેશ્ચન્સ પણ જોઈ લો. બગાસા નહીં અનુષ્કા, જલ્દી બેટા. તમને બધાને જોઉં છું, તમે સમજાવો લા, જલ્દી કરો. रूफ का वीडियो ऑन कर. बंद क्यों करती हो? मैं पढ़ाता हूं वैसे बंद करके वीडियो. ग्वाड़ी, कॉन्सेंट्रेट, जल्दी. कल्पित को निकाल दो या उसको वीडियो ऑन करो जल्दी. अग्रवाल, देखा अभी आया. जाता क्यों बार बार वीडियो देखा? कल्पित हैं, कहा मुंह छुपा के बैठे हो? क्या कर रहे थे? हैं, मजे ले रहे हो बाहर सबको देख देख के? हैं, चलो एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन कि जोरदार मजा आ गया, ऐसा कुछ कि ये मेरे को नहीं आता. सब यहां से आएगा आपका बोर्ड में पेपर. हाथ ध्वज बोलो बेटा. सर वो एक बार CRR है ना, हाँ, उसका भी एग्जांपल दिया था शेयर मार्केट का, कुछ एक बार मैं समझ नहीं आया था, एक बार आप ही समझाओ ना एक बार. CRR का एग्जांपल शेयर बाजार में आपने कुछ कहा था ना, कुछ लोग एक बार CRR समझा सकते हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं. समझाऊं क्या? ना CRR एक बार समझाओ ना, मतलब कैश रिजर्व रेशियो. हाँ हाँ, ये क्लास खत्म होने के बाद तुम इसको पढ़ोगे, इसको समझने का ट्राई करोगे, फिर मुझे फोन करना. ओके सर. क्योंकि ये डाउट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2+2 जैसा हो जाएगा. और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद एक बार स्पून फीडिंग नहीं चलेगा, इसको तुम खुद समझो बेटा. बहुत छोटी सी बात है ये, मैं कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम एफर्ट करो, एक बार वापस पढ़ना इसको. और फिर नहीं आए तो मुझे प्लीज तात्कालिक कॉल करना, वरना कौशिक तो है, उसको भी तुम कॉल कर सकते हो. चलो बहुत बढ़िया. कोई एक्सरसाइज में उसका कोई क्वेश्चन दिख रहा? एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन बेटा प्लीज वांचो. नाटक नहीं करता जोवानो. एक्सरसाइज MCQs है, 1 मार्क है, 2 मार्क है. विवेक प्रजापति प्लीज वहां टेक्स्ट बुक ला. ઘરમાં તો જો સાંભળતું નહીં કે તું તારા પપ્પા છે તે બોલાય તો પપ્પાને સામે લાય તો 1 મિનિટ. મમ્મી છે લાય સામે લાય.
તો ઘરમાં કેને તો ફાફા કઈ મારા જો આગળ ટેક્સ્ટ બુક જો ને ટેક્સ્ટ બુક કઈ જતા રે શો મી યોર ટેક્સ્ટ બુક હા તો એક્સરસાઇઝ જો ને આમાં હા બોલ પ્રવેક सर एक ओसीएम का डाउट पूछ सकता हूँ सर? हाँ नहीं वो अब्बास को पूछो तुम पाची खोटो ईगो हट થશે ને બબાલ થઈ છોડ ને ભાઈ हाँ भाई वो तो ये सर ने पूछ हो जाएगा डोंट वरी जस्ट यू नो कॉल मी या चलो हाँ ठीक है कोई डाउट है किसी को क्या आगे बढ़ूं मैं अभी एक्सरसाइज सॉल्व करी है वैष्णवी वैद्यते सॉल्व करी छे एक्सरसाइज કરી હોય તો સારું બેટા કારણ કે બોર્ડમાં વાંચવાનો ઈઝી પડશે ફટાફટ થઈ જશે હજુ પણ ટાઈમ છે બેટા કરજો ચલો आगे बढ़ते हैं સર हाँ कौन आया हाँ बोल के निशा સર પેજ 37 પર એવું લખ્યું છે કે 5 to 15 years હોય ને તો લોંગ ટર્મ લોન કહેવાય તો 15 years ની ઉપર હોય તો હા તે 5 to 15 એ લોંગ ટર્મ જ છે એટલે એની ઉપર લોંગ ટર્મ જ આવે વેરી લોંગ ટર્મ ઓકે પણ લેટ મી ટેલ યુ 15 વર્ષની ઉપર કોઈ લોન નથી આપતું ઓકે બરાબર છે હા કેમ નથી આપતું કે છે બદલ કેમ ના આપવી જોઈએ વિશ્વાસ ના હોય ને ભાગી જાય મરી વરી જાય આ છે તે છે ને પાછું એનું પણ ઇન્સ્યોરન્સ હોય હા एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं सो बात करते हैं विकास की तो चैप्टर नंबर 2 में विकास में आ जाओ जल्दी विकास का चैप्टर में क्या क्या था मालूम कैसे पड़ेगा विकास हुआ कि नहीं हुआ जल्दी क्या था उसमें एनआई और पीसीआई इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओमकार नोट्स में जो मारा बेटा नोट्स लिखिए बेटा आपने हाँ जल्दी इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहला पॉइंट नित्या गेलारिया नित्या बोलेगा हाँ नित्या यस सर पहला पॉइंट वाँचो हेमा सर इंडिकेटर्स indicators अच्छा હવે તો so I don't have the notes આ જો મને બધું ખબર પડી જાય આગળ you don't have the notes એટલે મારે ઘરે આપવા આવવાનું તને means no sir I haven't written એવું બોલ સર मैंने लिखा नहीं सर मैंने लिखा नहीं है notes अभी तक क्यों नहीं लिखा मेरे बेटे सर रह गया था હું કર લઈશ આ મમ્મી મમ્મી ઘરમાં છે બોલાય તેમને મમ્મીને બોલાય ને કેમેરામાં हाँ रूफका मोबाइल चालू कर वीडियो मम्मी wait sir 2 minutes I'm waiting I'm planning a zoom with the parents now next Sunday zoom with the parents मजा आएगा तुम सबकी नोटबुक चेक करेंगे साला ऑनलाइन पूरा चांद ने कहो ने आज ना 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 अच्छा भाई गैलरी पे लख्यो कम नहीं हजू दी સર રહી ગયું છે કર દઈશ સર એવું કેવું રહી ગયું એવું તે શું થઈ ગયું બેબી રહી દઈશ સર તારી પાસે 24 કલાક છે પતાઈ કાઢજે હા હા સર ઓકે બોલાય બોલાય ઓકે મમ્મી તો બોલાય પણ હા આવે છે આવે છે આવે છે ચાવા દે કામમાં બિઝી ના કઈ કામમાં બિઝી अरे सुपर चलो मम्मी तो कम से कम है बिजी तू तो एमए बिजी नहीं टोपा चलो एनीवेज हाँ ग्रोथ ऑफ एनआई एंड पीसीआई तो देश में विकास हुआ कि नहीं हुआ उसका सिम्टम क्या है एनआई और पीसीआई बढ़ेगा पर जब एनआई बढ़ेगा तो क्या हमेशा तुम कह सकते हो कि विकास हुआ नहीं नहीं अभी नहीं अभी करो इंतजार भाई इंतजार करो फल मीठा मिलेगा एनआई तो बढ़ा पर उसका मतलब ये नहीं है कि विकास हो गया क्योंकि एनआई के कितने लिमिटेशन है केनिशा एनआई ना कितना लिमिटेशन है केनी जो जाए अल्लाह गायब थे के केनिशा अरे म्यूट થઈ ગયું તો સર हाँ जल्दी बोल कितने हैं लिमिटेशन
हाँ, कौन से 3 जल्दी पर? नंबर 1, difficulty in calculating true national income, increase in population, and different methods of calculating national income. ये इन 3 भयंकर प्रॉब्लम्स की वजह से हम नेशनल इनकम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते एज एन इंडिकेटर। सुना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? सिम्टम्स है, ये किसके सिम्टम्स हैं? ये विकास के सिम्टम्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ओके, नंबर 2, पर कैपिटा इनकम, प्लीज उसके लिमिटेशंस पढ़ना, हेडिंग बेटा जल्दी। PCI shows only average. Difficulty in calculating national income and PCI only estimates deceptive indicator. Difficulty in comparison. बेटा डिसेप्टिव एटले बताता कम है, छुपाता ज्यादा। हाँ, डिसेप्टिव यानी छेतरपिंडी, चीटिंग जैसा। ओके, वो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। डिसेप्टिव यानी आपको लगेगा कि ओ पर कैपिटा इनकम तो कितना सारा बढ़ गया, पर एक्चुअली गरीब तो गरीब ही है, सिर्फ अमीर अमीर हो रहा है। अगर इतना पैसा इंडिया में है तो मैं तो अभी तक अंबानी बना ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। डू यू गेट द आइडिया? चलो फाइन, आई एम गिविंग यू 2-3 minutes national income and per capita income. प्लीज रिवाइज इन डिटेल विद द डेटा। वो कंट्री में कौन से इनकम लिखी हैं, पर कैपिटा इनकम। 1 more क्वेश्चन आएगा, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना था, पाकिस्तान का कितना था, नेपाल या श्रीलंका कितना दिया है, देखना, ये सब बोर्ड में आएगा। यू हैव 2-3 minutes, एक बार खाली जोड़ लो इन डिटेल। हरी अप केनिशा, जल्दी। हर्ष सबरवाल, नोटबुक बघा। NINPCI, रुद्रेश जल्दी। पूजा, आपकी नोट्स रेडी है बेटा? पूजा ठाकुर जी, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी, जय श्री कृष्णा। वाचन बेटा केम फाफा मारू छो? कैमरा चालू देखा ज બધું? बस હવે નોટબુક ના પાના ફેરવવા, ખાલી ખાલી ડોહો જોયા કરે, ટોપી। चलो हो गया। NINPCI चलेगा ना, एग्जाम में आएगा शॉर्ट नोट, तो प्लीज फाफा मत मारना। हाँ प्रवेक, जल्दी बोलो। प्रवेक फास्ट। सर ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा था। हाँ तो बाद में घर पे कर लेना, अभी टाइम नहीं है। नंबर 2, बिकॉज यू नो टाइम इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। नंबर 2 क्या है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। कल्पित जल्दी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिनकी नोट्स रेडी है, ये कौन ढूंढा? डेविस मॉरिस ने ढूंढा, डी मॉरिस ने ढूंढा, बराबर है। इसमें कितने कंपोनेंट्स है टोटल? 3 कंपोनेंट्स है। कौन से हैं? लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगर ये तीनों में इंप्रूवमेंट होगा तो कल्पित मैं कह सकता हूं क्या के डेवलपमेंट हो रहा है। डू यू गेट द आइडिया? कल्पित को अगर बाप बनना है तो ये जरूरी है कि उसके बच्चे हो। डू यू गेट द आइडिया? न सिर्फ बच्चे हो, वो जिंदा भी रहे लंबे समय के लिए, क्योंकि अगर पैदा होते मर गए तो काय का बाप। कल्पित को लाओ स्क्रीन पे। कल्पित सर आए। कल्पित बेटा, बच्चों व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? कल्पो, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? सर हाँ बोलो। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मीन्स, बोलो। सर भूल गया सर।
भूल गए? भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हो एक बही बात न भूली, कल्पित तुझे क्यों नहीं आता ओ। अल्लाह डोफा वाचिन बोलने भूली गई એટલે हाँ? नहीं है ओ नहीं है मम्मी है, मम्मी घर पे है? सर बाहर हूँ मैं इसलिए। अच्छा घर, तुम बाहर हो? चलो कोई बात नहीं, जूम पे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो हाँ, पार्थ फड़के काय जाल, जवाब देना है तेरे को। हाँ उसको जवाब, हाँ बोल जवाब। सर जो बच्चे 1 साल की कम उम्र में 1 साल से भी कम उम्र के होते हैं, जो उनकी डेथ हो जाती है तो वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी हाँ तो वो रेट बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। हाँ ओके, तो ये सब एग्जाम में आएगा। प्लस उसके अभी बहुत जरूरी बात पे ध्यान देंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट फीचर और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और लिमिटेशंस। जल्दी पढ़ के देखे, 2 मिनट्स जल्दी जल्दी बेटा। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, लिमिटेशंस ऑफ पीक्यूएलआई, याद आ गया? सिर्फ 3 बातों पे हम जज नहीं कर सकते, और हर एक पैरामीटर को 100 मार्क पे हम जज नहीं कर सकते। गुजराती भी 100 मार्क का, संस्कृत भी 100 मार्क का, सभी कुछ 100 मार्क का, मजा नहीं आता। लेकिन क्या करें, सिस्टम से मजबूर है हम लोग। कुछ याद आया? रिवाइजन करा रहे हैं आपको, रिवीजन। और पीक्यूएलआई कितने स्केल पे आता है? बिटवीन 0 to 100। यस, 0 to 100। जल्दी जल्दी फास्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और लिमिटेशंस, प्लीज रीड। जिनके नोट्स तैयार हैं प्लीज। चलो अभी लास्ट पॉइंट खत्म करते हैं, आधा बाकी था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लास्ट 5 मिनट्स एंड वी टेक अ कॉल ऑफ। जल्दी हाँ केनिशा वाच। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आधा हो गया था हमारा, आधा बाकी है। एक बार पूरा पढ़ ले फिर फिनिश करते हैं। स्टार्ट। United Nations Development Program UNDP gave the concept of HDI through HDR in 1990. In 2010, some improvements were introduced in the minimum and maximum values which were used to measure HDI. Determinants of HDI. Following components are used to determine HDI: life expectancy, knowledge, and good standard of living. Life expectancy, the number of years a person is expected to live after the birth, is called life expectancy. If life expectancy is less than 50 years, it shows poor medical services and low economic development. Knowledge, people in the age group of 15 or more are considered in this. Stop. 2 points are Remember मैंने कहा था अपना इंडिया का अलग है, 7 साल से गिनना शुरू कर दे, याद आ गया? और वो करण पटेल पढ़ रहा था उस दिन, याद आया करण तेरे को? है ना? 7 इयर्स इंडिया का और इंटरनेशनल का 15 इयर्स है। हमने ये सब लास्ट टाइम डिस्कस किया था, भूलना नहीं। ओके गो अहेड, लास्ट ट्यूसडे वी डिस्कस दिस। हाँ पढ़। 2 points are considered in knowledge: number of years of schooling 15 years, expected number of years of schooling 18 years. The gap between expected and the actual number of years of schooling is taken to derive the value of literacy. Good standard of living, availability of clean drinking water, medical services, drainage facility, low IMR, etc. are considered in these criteria. It depends upon the individual income. Important aspects of HDI. The value of HDI is measured between 0 and 1. The country whose HDI is closer to 1 or nearer to 1 is more developed, and nearer to 0 is less developed. In 2014, Norway was ranked 1 with HDI of 0.944, and India was 0.609 with rank 130 out of 188 countries. Yes, यहाँ तक अपना हो गया था। आगे पढ़। सर आगे उसके बाद मैंने वो कैलकुलेशन लिखा है। हाँ वो टेबल मुझे पता है। उसके बाद पढ़ो ऑन द बेसिस ऑफ HDI। सर वो दूसरी बुक में है और वो दूसरी बुक पता नहीं कहाँ पर है। तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है?
नहीं मतलब वहां पे पढ़ी, अभी उठ के जाऊंगी तो चालू कैमरा में ऐसा। अच्छा हाँ प्रवेक पढ़ेगा। हाँ प्रवेक कंटिन्यू बेटा। ऑन द बेसिस On the basis of HDI, the countries have been classified into following 4 categories, yes which shows the value and types of countries based on HDI values. वो टेबल पढ़ना है सर? हाँ पढ़ो पढ़ो, बहुत जरूरी है। In the world, 1 to 49, highest maximum value of HDI। हाँ maximum value of HDI. वापस पढ़। those 0. countries वापस those countries whose value of HDI is up to 49. नहीं अब और 0.890 ऐसा लिखा है। हाँ, comes in the category of 1 to 49 countries. These countries have maximum human development. तो बेटा यहाँ वो हमको सर ऐसा सेंटेंस नहीं लिखवाया है, ऐसा टेबल बनवाया है सर। हाँ हाँ चलेगा, वो टेबल करेगा। तो 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक गुड, दूसरा एवरेज और तीसरा वेरी गुड। उसी प्रकार से 3 प्रकार के हमने कंट्री बना दी है। जो हम देखें नंबर 1 जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है तो कितना आएगा 0.89 और स्केल कितना था अप टू 0 to 1, तो 0.89 तो काफी करीब है। किसके करीब है? बहुत ही 1 के करीब है। तो वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होगा। और ये कैटेगरीज वो पढ़ने वाला है, प्लीज पे अटेंशन रुफका। ये एग्जाम में पूछेंगे 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, तो भूलना नहीं जो अभी वो पढ़ने वाला है। ये 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, प्लीज पे अटेंशन। हाँ गो अहेड। The rank in the world is 1 to 49. Type of country, highest human development. Average value of HDI is 0.890. Then rank in the world 50 to 105. Type of country is high human development. Yes. Average value of HDI is 0. मैक्सिमम के बाद सेकंड कैटेगरी कौन सा आया? हाई। मैक्सिमम से थोड़ा कम, हाई नीचे आया। ठीक है, पढ़ो फिर। उसमें एवरेज वैल्यू ऑफ एचडीआई है 0.735. Yes. Then rank in the world 106 to 143. Okay. Type of country is moderate human development. और अपना कौन सा रैंक था? 130. हाँ, तो हम तो दोनों में नहीं आ रहे, हम तीसरे में आ रहे हैं। तभी हमें बोलते हैं विच कंट्री? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। यस, ये अपमान है इंडिया का। पढ़ो। और एवरेज वैल्यू ऑफ एचडीआई वो मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट में है 0.1614. Rank in the world 144 to 188. Type of country is low human development. Average value of HDI is 0.493. Importance of HDI. HDI is a complete indicator because it considers not only economic factors but also social welfare. Yes. Second, HDI's ultimate objective is only human welfare. Third, true progress is equal to economic progress plus social progress. Fourth, HDI is functional. A rise in HDI shows improvement in death and education. Fifth, HDI data helps government to decide that in which field more efforts are required and increased scope for development. HDI से मालूम पड़ता है कहाँ पे एफर्ट्स करने की ज्यादा जरूरत है सरकार को। बराबर है? क्योंकि पता है क्यों ये अच्छा है? Why it is a good indicator? वहां लिखा ना इकोनॉमिक प्रोग्रेस मालूम पड़ता है एंड इवन सोशल प्रोग्रेस। आया था औरतें पैरों की जूती हैं, वो स्टेटस, ये सेंटेंस गलत है, ये सोशल स्टेटस गलत दिया हुआ है। तो जिस समाज में अगर ऐसा चल रहा है तो प्रोग्रेस वो बैकवर्ड कंट्री है, वहां विकास कभी नहीं होगा। इसको चेंज करो सोसाइटी को, ऐसा वो बोल रहा है। पढ़ो फिर। Limitations of HDI. Please read last point. 6th point है HDI is progressive. Limitations. हाँ. HDI has only 3 indicators, which is not sufficient to show economic development. Second, it is not proper to give equal weightage to all components like knowledge, good standard of living, life expectancy, because they keep on changing with the changing situation. ये PQ वाला का repeat हो गया। हाँ फिर। Third, HDI is not an absolute expression; it shows relative progress. हो गया नहीं हो गया ना? ठीक है, चलो स्टॉप और हियर। बाद में इसको थोड़ा बहुत समझ लेंगे वापस इन डिटेल। ओके चलो, मैंने आज आपको करवा दिया रिवीजन ऑफ द होल चैप्टर नंबर 4 और 2 भी हम करवा रहे हैं। रोज ऐसे घर पे आगे थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाना फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है ना? चलो बाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।